Now coming to question number 5 of exercise 3.1. Following table shows the points of each player scored in 4 games. क्या है? There are 3 players A, B and C and there are 4 games 1, 2, 3 and 4 and player A score in game 1 is 14. गेम 2 में प्लेयर ए ने कितना स्कोर किया 16, गेम 3 में 10 एंड गेम 4 में अगेन 10. ऐसे ही बी का स्कोर 1 फर्स्ट गेम में रहा 0, सेकंड गेम में क्या था 2 एंड थर्ड गेम में 6 एंड 4. अगेन इन गेम थर्ड प्लेयर सी का स्कोर कितना रहा है? फर्स्ट गेम में 8, सेकंड गेम में 11 एंड थर्ड ही डिड नॉट प्ले, ही और शी डिड नॉट प्ले, उसने ये थर्ड गेम खेला ही नहीं एंड गेम फोर्थ में 13. नाउ on the basis of following observations we are to answer the following question. First is find the mean to determine A's average number of points scored per game. ये क्या पूछते हैं कि A का हर एक गेम में स्कोर का एवरेज फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, A का स्कोर हर एक गेम में पहले नोट डाउन कर लेंगे. फर्स्ट में कितना है स्कोर 14, second game में 16, 10 and 10. I have already written here 14 plus 16 plus 14, 16 and 10 and 10. Now we are to find out the mean. To find out the mean, the formula is sum of all the observations divided by number of observation. क्या किया हमने? Because there are only 4 games, there were 4 games and I have sum up of scores of all the 4 games of player A. 14 plus 16 plus 10 plus 10. Answer is, after adding 14 plus 16 is 30, 30 plus 10 is 20, 40, 40 plus 10 is 50, 50 divided by 4. Now after dividing 2 to the 4 and 25 to the 50, इसके बाद हम cancel out नहीं कर सकते, so 25 by 2. We can solve, we can convert this in decimal form 25 by 2. 2 1 ja 2 and come after this 25, 2 2 ja 4, 4 and 5, remainder is 1 here. So after this we will take a 0 and 0 here and here will be decimal point because हमने एक 0 अपनी तरफ से लिया है यहाँ पे. So 2 5s are 10. Answer remainder is 0 here. Remainder is 0 here and here will be 5 2 5s are 10. So answer is 12.5. Now coming to second part of question number 5. To find the mean number of points as per game for C, would you divide the total number of points by 3 or by 4? Why? आपको क्या लिखना है कि हमें अगर C का एवरेज फाइंड आउट करना है कि कितना स्कोर हुआ एवरेज, तो हमें उसके लिए क्या फाइंड आउट करना होगा. कम टू अगेन C स्कोर. C के स्कोर पे आ जाते हैं. गेम 1 में C गॉट 8 and here 11 score रहा उसका. थर्ड गेम he did not play and गेम फोर्थ में 13 स्कोर रहा. तो दैट मीन्स गेम थर्ड उसने खेला ही नहीं. सो देयर वाज 3 गेम्स फॉर C. सो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें मीन को टोटल को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. वाई? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ वी आर टू डिवाइड बाई 3 ओनली. And reason is because there C didn't play. C plays only 3 games. Game third he did not play. So you can write it on this answer. Now coming to third part of question number 5. B played in all the 4 games. How would you find the mean? बी ने सभी 4 गेम खेले हैं. आप उनका स्कोर कैसे, उसका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करते हैं कि बी का स्कोर लिख लेते हैं सभी गेम्स. गेम 1 में कितना स्कोर किया उसने 0, गेम 2 में 8, गेम 3 में 6 एंड गेम 4 में 4. सो आई हैव एडेड ऑल द
0 to find out mean I have to add all the observation, all the scores in 4 games. 0 plus 8 plus 6 plus 4, 8 or 6, 14 plus 4 is 18, divide by 4. So 2 2 ja 4 and 2 9 ja 18. So answer is 9 by 2, and after dividing 2 9 by 2, 2 4 ja 8. ओके एंड 1 हम अपनी तरफ से 0 अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पॉइंट रहेगा. एंड 2 5 ज़ा 10. सो आंसर रिमाइंडर इज 0 एंड हेयर विल बी आंसर इज 4.5 here. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर. बेस्ट परफॉर्मर कौन है? हमने क्या किया, जो मीन ऑफ ए के स्कोर्स का मीन फाइंड आउट किया, मीन ऑफ बी स्कोर, बी के स्कोर्स का मीन फाइंड आउट किया, बट सी के स्कोर का मीन हमने फाइंड आउट नहीं किया, तो हम वो भी फाइंड आउट कर लेंगे. पहले हम सी के, जिसका एवरेज बेस्ट है वही बेस्ट परफॉर्मर है. ओके, सो मीन ऑफ सी स्कोर इज़, बिकॉज ही प्लेड ओनली 3 games, game 1, game 2 and game 4. फर्स्ट गेम में he got 8 score, his score was 8. सेकेंड में his score was 11 and third में 13. So 8 plus 11 plus 13. What is the answer? 3 plus 1 4, 4 plus 8 12, and 1 plus 1 plus 1 is equal to 32 by 3. After dividing 32 by 3, you get 10.667. Okay, you get all the times 32 divide by 3, 3 1 ja 3 and 2 here, because 2 is less than 3, so after this we can't go, मतलब हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते. सो अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0, दैट मीन्स एक 0 आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पे भी 0 अप्लाई करना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट इज 3 6 जा 18. आफ्टर अगेन यू गेट 2, एक और 0 अप्लाई किया हमने 18. आप जितनी बार भी, दैट मीन्स दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. एंड जब भी आप यहाँ आफ्टर डेसिमल पॉइंट 5 से ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो आप क्या कर देते हैं, 666 की बजाय आप क्या लिखेंगे 667, और ऑल्सो यू कैन राइट हेयर 10.67. नाउ बी का, ए का स्कोर कितना था, मीन ऑफ ए स्कोर, ए का स्कोर कितना आया था स्टार्टिंग में, उसका मीन वैल्यू 12.5. बी के स्कोर की मीन वैल्यू कितनी आई थी 4.5. एंड सी का स्कोर की मीन वैल्यू कितनी आई है 10.67. ओके, 10.67. सो तीनों के स्कोर से हमने आइडिया लगा सकते हैं कि किसका एवरेज, जो हमने तीनों का एवरेज निकाला, किसका एवरेज ज़्यादा है. सो ए के स्कोर्स का एवरेज ज़्यादा है, सो ए इज़ बेस्ट परफॉर्मर हेयर.